So starting with example 16-6, I hope this 16-6 slide is visible to all of you. Yes, sir. इसमें हमारे पास कितनी rigid bodies हैं? Can you identify the rigid bodies which are being shown to you in the figure? जी, how many rigid bodies are there which you can see in the figure? सर अगर वो स्लॉट्स को बाउंड्री ट्रीट करें तो फिर 3. कौन कौन सी? One is the piston at A which is moving downward. The other one is piston at B which is moving towards the right. And the third one is this rigid body connecting A and B. So this ABC is the third rigid body. So overall, we have 3 rigid bodies in this figure. Rigid body A is constrained to move in the vertical slot. So किस तरह का मोशन इस A का होगा आपके ख्याल में? जो 3 तरह के मोशन हमने पढ़े, ट्रांसलेशन होगी, रोटेशन होगी या जनरल प्लेन मोशन है A का? ए और बी दोनों की ट्रांसलेशन ही होगी. So both A and B are in translatory motion. However, A is constrained to move within the vertical slot, whereas B is constrained to move within the horizontal slot. Okay, what about this rigid link ABC? Which type of motion is this rigid link undergoing? ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों. तो आपके पास सिर्फ आपको समझाने के लिए किया क्या है कि इन्होंने एक इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन ये शो की है और अगले इंस्टेंट पे इसकी पोजीशन जो है वो ये शो की गई है. इट मींस के इसमें ना सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है बल्कि साथ साथ रोटेशन भी हो रही है. सो रिजिड लिंक ABC इज बेसिकली अंडरगोइंग साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दैट इज जनरल प्लेन मोशन. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन ऑन दिस लिंक ABC. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay. So अब जरा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. The link shown is guided by 2 blocks A and B which move in the fixed slot. If the velocity of A is 2 meters per second downward, that is at the instant when theta equal to 45 degrees, the block A जो है that is moving downward with a speed of 2 meters per second. You need to find out कि at this instant what is going to be the velocity of block B. Is this question clear to all of you? Okay, so starting with the solution, first of all चूंकि vectors वो vector equation है उसमें vectors involve होते हैं. So first of all writing these velocities in vector terms, starting with velocity of A. What is the magnitude of this velocity from the figure? So the magnitude is 2 and since it is moving downward, so हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम डिफाइन करें जो कि प्लेनर मोशन है, z एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, x और y एक्सिस है खाली. So this A is going to move downward along the y axis. So we can write it as -2j meter per second. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, what about the velocity VB, the absolute velocity of B? Do we know its magnitude? Do we know its direction? Yes, sir. Yes, sir. So if A is moving downward, B would be moving towards the right, isn't it? सर वेलोसिटी सेम होगी. Just a minute, वो अभी कॉमन सेंस में हम बाद में आते हैं, फिलहाल मैथमेटिक्स पे जाते हैं, कॉमन सेंस की भी बात करेंगे बाद में. ऑल्दो आपकी बात सही है, कॉमन सेंस कहती है when angle is 45 degrees, the velocity of A and B should be exactly similar, but let us try to solve it using mathematics and then later we will discuss our common sense. ठीक है? Yes, sir. Okay. बल्कि नहीं So होती. if that angle is not 45 degrees, then definitely the velocities are going to be different. वो क्यों होगी? इसीलिए पहले मैथमेटिक्स पे जाते हैं, उसके बाद फिर हम कॉमन सेंस की बात करेंगे. Okay, we know कि piston B is going to move towards the right. Is there any chance कि block A नीचे आ रहा है और block B left की तरफ जाए? कोई possibility है? सर अगर जॉइंट अगर वो जाता है तो फिर क्या होगा? लिंक टूट जाएगा. लिंक की शेप ये हो जाएगी. So क्या फिर वो rigid body रहेगी? No, sir. No, because rigid body by definition is incapable of any deformation. So हम कहते हैं कि जिस तरह अभी हमने कहा था velocity of A which is going to be downward. So VA हमने लिख लिया which is -2j. So this VA is -2j meters per second, जो भी आपके पास यूनिट है. And as far as this VB is concerned, we don't know its magnitude, but
we know that this is going to be VBI. ठीक है, clear है ये चीज? Okay, now since this rigid link ABC is in general plane motion, so we are going to write the relative velocity equation for this link in order to find out the value of VB. बेस पॉइंट हम किसको बनाएंगे, ए को या बी को, और क्यों? ए को सर, इसकी वैल्यू मालूम है। जिस पॉइंट का भी मोशन हमें नोन हो हम उसको बेस पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ अगर हम ए को बेस पॉइंट बनाएंगे तो हमारी इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? इट वुड बिकम VB शुड बी इक्वल टू VA प्लस ओमेगा क्रॉस R। ऐसे ही है जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी। यस सर। ओमेगा क्या होगा? AB या ओमेगा BA? AB। और R क्या होगा? RBA होगा या RAB होगा? RBA लिखा है। अच्छा, इसमें मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था ओमेगा AB होगा या ओमेगा B होगा, आपने कहा ओमेगा AB। इज ओमेगा AB डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा BA? यस सर। नो, ओमेगा इज बेसिकली वन रिजिड बॉडी, ये एक ही ओमेगा के साथ रोटेट कर रही होगी आइदर क्लॉकवाइज और इनका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ओमेगा BA लिखें या ओमेगा AB लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वन ओमेगा जिससे ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। अलबत्ता RBA और RAB दो डिफरेंट चीजें हैं। RBA इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A और RAB इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों R सेम है, लेकिन डायरेक्शन इनके। और RBA क्यों लिखा है? एनी आइडिया? बिकॉज वी आर राइटिंग दिस रिलेटिव वेलोसिटी, इसमें हमें ये सीक्वेंस मेंटेन रखना है। अगर आपको याद हो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। VB शुड बी इक्वल टू VA प्लस VBA। तो चूंकि VBA आ रहा था इसलिए यहाँ RBA आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके। सो नाउ पुटिंग, अब हम इसी चीज को आगे बढ़ाएं। VB आपको गिवन है विच इज VBI, VA आपको गिवन है विच इज -2J प्लस ओमेगा क्रॉस R। कैन यू राइट दिस ओमेगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर? राइट हैंड रूल क्या होना चाहिए ओमेगा वेक्टर फॉर्म में? ये रिजिड लिंक AB, अगेन चूंकि मैकेनिज्म सिंपल है यू कैन आइडेंटिफाई, और आपको गिवन भी अगले इंस्टेंट पे क्या पोजीशन होगी। इट मींस कि ये लिंक इस डायरेक्शन में जो मैंने ब्लू से शो किया ये हर एक को नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, isn't it? Yes sir. So what is this direction, clockwise or counterclockwise? Sir, counterclockwise. So counterclockwise, so counterclockwise को जब आप राइट हैंड रूल के थ्रू कन्वर्ट करेंगे ये क्या बन जाएगा? इट वुड बिकम ओमेगा ABK, isn't it? So this would be omega ABK। अगेन चूंकि मैकेनिज्म सिंपल था आप जज कर सकते थे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बाय कॉमन सेंस कि दिस रिजिड लिंक AB is going to rotate in a counterclockwise direction. However, once the mechanism becomes complicated, judging the direction of omega would no longer remain simple. उस केस में you can assume omega to be in a counterclockwise direction, solve it। सोल्यूशन के बाद अगर ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव आए इट मींस कि योर assumption इज करेक्ट। अगर ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आए इट मींस यू आर गोइंग टू रिवर्स योर assumption because it is the only unknown thing which is present here in the equation. All other things are known to you. So आप ओमेगा की डायरेक्शन फिर अज्यूम कर सकते हैं अगर मैकेनिज्म आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाए। Is this point clear to all of you? Yes sir. Okay, what about RBA, the relative position of B with respect to A? कौन सा वेक्टर है ये? It is this vector which is shown to you here as yellow arrow. So what should be the vectorial form of RBA? It is going to be negative y positive x, isn't it? Yes sir. एंगल किससे गिवन है आपको? 45 डिग्रीज। y से x से? Sir, y से। y से, तो इट मींस कि cos कंपोनेंट आप ऑल्दो 45 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट टू कवर द मैथमेटिक्स you can write it as 0.2 sin 45 I minus 0.2 cos 45 J। क्लियर है ये चीज? ओके, सो मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन। ये आपके पास वो इक्वेशन आई जो कि हमने लास्ट उसमें की थी। अब इसमें ये इक्वेशन कहां से आई? इफ यू रिमेंबर हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और हमने फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है। सो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी
0.2 omega AB sin 45 K cross I. If do you remember this small circle जो हमने पढ़ा था, K cross I क्या होता है? K cross I is J, so हमने यहाँ इसको J कर लिया. इसी तरह सेकंड उसमें आए omega AB into 0.2 cos 45 with a negative sign K cross J. What is K cross J? माइनस आई, तो वो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गए. क्लियर है ये चीज? क्रॉस प्रोडक्ट. अगर अब आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो डिटरमिनेंट वाले मेथड से ये क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, आप चाहें तो वो जो हमने तरीका दूसरा पढ़ा था उसके मदद से आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं. सो आफ्टर टेकिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट, दिस वुड बी योर ओवरऑल इक्वेशन. सॉरी, ये इक्वेशन क्लियर है? देख के किसी को क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सर. Okay, so now since it is a vector equation, it means that the individual components I and j components on both sides of the equation will be equal to each other. ऐसे ही है? Yes sir. So once you compare the I coefficients, it means that this VB should be equal to 0.2 omega cos 45. So VB equal to 0.2 omega cos 45. When you compare the j coefficients, राइट साइड पे जो j कोफिशिएंट है वो 0 है, सो 0 शुड बी इक्वल टू दिस थिंग विच इज -2 + 0.2 ओमेगा AB sin 45. दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं. वंस यू सॉल्व इट, you are going to get the value of omega to be equal to 14.1 radians per second, and since this value comes out to be a positive quantity, it means that your assumption of omega to be in a counterclockwise direction is correct. Similarly, आपके पास VB जो है वो 2 meters per second आई, which is equal to VA as far as the magnitude is concerned. So common sense भी हमें यही कह रही थी कि 45 डिग्रीज अगर एंगल है तो जितनी वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है उतनी वेलोसिटी से ये आगे जा रहा होगा. However, if this angle becomes equal to 46 degrees, the value of VB is going to be different because some of the energy is going to be now converted into translational energy, whereas the other one will be converted into rotational form as well. Is this point clear to all of you? कोई डाउट किसी का इस सवाल के हवाले से? ओके, सो चूंकि 10 बज के क्या टाइम हो गया, 10 बज के 2 मिनट हो गए, प्रोबेबली वी विल नॉट बी एबल टू फिनिश द नेक्स्ट एग्जांपल जो कि अभी हम स्टार्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. आज इस वीक के लेक्चर हमारे यहीं खत्म होंगे. नेक्स्ट वीक हम थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह रिलेटिव एक्सेलरेशन एनालिसिस भी जो है वो शुरू करेंगे. कोई क्वेश्चन जो आपका इस रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस या इस एग्जांपल के हवाले से हो, आप पूछ सकते हैं यहाँ.